So, have you done some work which I asked you to do in last class? Have you done some practice No. work? Uh, I painted a watercolor for my school work, so Okay, okay, I didn't. that's very fine. But I'm asking for the works which we are doing here in class. Sketching topic is going on for NIT, right? Yeah. Okay, okay, no problem. So, what we did in last class? Just remind me of that. हाँ. uh, हमने we have studied the We human repeat figures from. figures from front and side view. So No, we from back. We did it from back. we have done front and back, right? Back. Yeah. Great, great, great. So now I'm starting. I just repeat the front view, right? I just repeat the front view for you. Just a quick Okay. revision. Yeah. One head, double of this, Hmm. shoulder and waistline, and Hmm. again repeating for knee level, and this Hmm. is for your ankle, right? Ankle, Yeah. ankle level, and here comes your this thing, arms, slant lines, and elbow is right above your waistline, opposite mirror image, and wrist comes up to your crotch Hmm. level, and hands up to your thighs, right? So Hmm. this is what we have done in last class. Hmm. Yeah. Right? Hmm. We are taking the reference of basic shapes, 3D shapes for creating arms, legs, every body part, right? The same Hmm. opposite will be there for your left hand side arm, right? So, okay, this is your front, and I just repeat the back as well. Basically, the basic structure is same for back, same as front, but the Hmm. curves will be flipped to the other direction. Even the curve for the baseline has to be flipped. The lower torso in front is seen this way, just like a brief shape from the front, and from back looks like this, a bowl shape. Yeah. So here, this is what I'm using, and just creating the legs from behind, and here comes your feet part. This is what we have discussed in detail in last class, Hmm. right? And as far as your head part is concerned, then yeah, ears, right? Your hair. So this is from back, and we have done standing, running, walking, and sitting from front Yeah. and side. Now I'm starting. Basically, this is what I did, like a revision kind of a thing. And Hmm. now I am doing 3/4. This is very important when it comes to animation or using figures in
illustrations or comics and in light shoots, 3/4 angle, Hmm. 3/4 profile is used to the maximum. So I take one example, like say I take this figure. So now I create this in basics. What actually 3/4 frame is? Look, for body part, what I'm doing, I'm taking the reference of a matchbox, Yeah. right? This is from the front, and when it comes to back, again same to be used, front and back. Hmm. But from side, matchbox looks like this. आपको matchbox narrow दिखता है? It looks narrow from the side Yeah. profile. And okay, what I do, I just draw a side frame for a moment. Okay, little narrow frame, then repeat it. Same calculation, but your body from the side, it has curves for the front and from for the back part. That way, if I use little advanced way of creating figures, Hmm. here it is here, this thing, upper body from shoulder to waist line up to cross level, and here comes your legs. But I'm using easy way for creating figures for entrance exam preparations. Hmm. Okay, this curve basically we want the slope kind of a thing we want from the front, right? But that has to be Hmm. generated from the box itself, and from back you can keep it straight. It's going little inside from back, but you can keep it straight in this box when we use this box method. Then for paste, same thing, and the lower the torso part comes like this. And legs, same cylindrical shape you can use, right? You can depict the second leg a bit from the other end. Here comes your neck. Now we can remove this torso line here, cross line. Now comes your arm. अब जैसे हम लोग फेस को डिजाइन करेंगे, the same from the center, eye level, right? So this is a side profile of a figure, right? Yeah. Okay, I just repeat it once more, just the upper part, the neck, and the front side and the back, the waistline, the torso part, and legs, and arms. Wrist part comes to your uh, crotch level, Hmm. and hands come up to your this thing, thigh level, right? Basic Hmm. calculation is same, 7.5 heads calculation. That's it. So now we reach up to the 3/4 figure frame, which is very important in terms of everything which I just said, for animation, for comics, illustration, even for Hmm. entrances. If you draw anything, whether it's not about the figures only, it's about background also. If you're even the product, even if you're asked to do if you're asked to make a or draw some object, some gadget, some furniture, some electrical items or anything, then even that thing has to be shown in 3/4. And when it comes to your figures, definitely 3/4 most preferred. So मैं अब एक बार बना के दिखाता हूँ क्या होता है. फ्रंट में मैंने आपको शायद कल बताया था लास्ट क्लास में कि फेसेस मैंने बनाए थे आपके लिए. डू यू रिमेम्बर दैट? Uh, हाँ. ओके, फेसेस में जैसे Hmm. फ्रंट सर्कल हम यूज़ कर रहे हैं, एंड सर्कल Hmm. के बाद 3/4 लेवल को हम बेसिकली रिपीट करते हैं. दिस लेंथ इज रिपीटेड
You just make the double of this. Then comes your lower part of the face. This is for front and back, from eye level to nose, ears. When it comes to side profile, it remains maximum broader, right? Hmm. And again, for up to 3/4 level, eye level, I mean, we create eyes, and from that you can repeat and draw this again, little broader, because this is circle and this is the oval. Ears, फ्रंट में ears हम लोग एग्जैक्ट एज पे बनाते हैं कॉर्नर में, बट व्हेन इट कम्स टू साइड प्रोफाइल, ears थोड़े से अंदर बनते हैं, just behind your this thing center part, jawline and your chin. Center is for eyes, same nose and lips, right? We can create variety of looks here. So this is it. This is your side, but when it comes to 3/4, 3/4 is semi-circle, semi-oval, whatever you say, whatever you call it. Circle से बड़ा और oval से थोड़ा सा छोटा. 3/4 means yes. When it comes to shape, 3/4 मतलब ये होता है, अगर एक मैच बॉक्स का रेफरेंस अगर हम लेते हैं, तो 3/4 means rotated, tilted view, Hmm. diagonal frame for front, Yeah. right? For front or for back. So 3/4 means when you take the half from the front, so left hand side part it shows very little, and right hand side part it comes with your sides also. तो इसका जो complete एक Hmm. ratio है वो ज़्यादा हो जाता है, and राइट हैंड साइड का रेशियो 60:40 हो सकता है, डिपेंड करता है कि हाउ टिल्टेड इट इज़. अगर इसको मैं ज़्यादा टिल्ट कर दूंगा तो इसका रेशियो आपको ज़्यादा देखने में लगेगा. सपोजिंगली इट लुक्स लाइक एज इफ दिस इज 70%, द लेफ्ट हैंड साइड इज 30%. इवन अगर मैं इसको और रोटेट कर देता हूँ और ज़्यादा, तो इसमें इसका रेशियो और चेंज होता चला जाएगा. लुक एट, Hmm. suppose this is 90:10, but what we do, we keep it up to 60:40 का रेशियो हम लेके चलते हैं. 60:40. अब जैसे बॉडी में बना रहा हूँ, बॉडी में क्या होता है, आई लेवल पे आपको फ्रेम जो लेना है वो फ्लैट रखना है, बट बिलो दैट आप वेस्ट लाइन पे आप इसको टिल्ट कर दीजिए. इट्स वेरी इजी टू मेक, थोड़ा सा सिर्फ देखते जाइए. अब 3/4 मैंने आपको बताया था. 3/4 व्हेन वी आर टेकिंग 3D शेप, तो ठीक है, वेरी फाइन, बट Hmm. नाउ वी आर डिपिक्टिंग अ फिगर फ्रॉम अ 2D शेप ओनली. हमें 3D बनाने की नीड नहीं है, बट उसका रेशियो हम अकॉर्डिंगली ले लेंगे. 60:40 का रेशियो इज गुड इनफ ऑल द टाइम. तो ये आपका सेंटर हो जाएगा. ये सेंटर पार्ट आपका 60:40 पे फॉल करता है, राइट? Hmm. अब इसका लोअर टोर्सो क्या होता है इन 3/4 प्रोफाइल, ये देखिए, ये भी सेंटर पे आएगा. ये जो सेंटर है वो सेंटर 60:40 पे रहेगा. जैसे हम इसको फ्रंट में बना रहे थे लोअर टोर्सो को, तो एग्जैक्ट सेंटर का ही. एंड व्हेन इट वाज अ साइड प्रोफाइल, तो साइड तो एग्जैक्टली साइड ही है, बट व्हेन इट इज 3/4, 3/4 means 60:40 ratio, and center falls at the center line, obviously जो इसका center है. तो this way it will be used for the lower torso. So I draw this again. मैं फ्रेम बाय फ्रेम बनाता हूँ. जैसे मैंने पहले इसको बनाया फॉर शोल्डर टू वेस्ट लाइन 3/4. देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेंटर शिफ्ट हो गया, 60:40 के रेशियो पे सेंटर आ गया. अगर मैं इसी के Hmm. साथ ही लोअर टोर्सो भी अटैच कर देता हूँ, if I attach lower torso to it, तो लोअर टोर्सो में सेंटर यहाँ आएगा, ये देखिए, बैक थोड़ा सा विजिबल रहेगा, और थोड़ा सा फ्रंट अदर एंड ऐसे आएगा, राइट? अब इसी के अंदर अगर हम लेग्स देखें, एक चीज़ और है, अगर हम इफ यू आर शोइंग टू सिलेंडर्स केप्ट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो पूरा पूरा दिखेगा, बट Hmm. 3/4 प्रोफाइल मीन्स ओवरलैपिंग. The Okay. thing kept ahead covering little part of any shape which is kept behind to that. तो इसमें जो इसका सिलेंडर का ये वाला जो कुछ पोर्शन है वो हाइड हो जाएगा, राइट? Hmm. जैसे अगर मैं इसको एंगल भी चेंज कर देता हूँ, तो any cylinder or anything get next to this will be hidden to some extent. थोड़ा सा उसका पार्ट कवर्ड रहेगा. सेम थिंग इज यूज्ड फॉर
3/4 फिगर एज वेल। तो इसमें 3/4 फिगर में अगर मैं सिलेंडर को ऐड कर देता हूँ तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा कि इसका लेग जो है, नेक्स्ट पीछे वाला लेग को थोड़ा सा कवर हो जाएगा, द वे आई हैव शोन इन दिस एग्जाम्पल, राइट। हम्म अब इस फिगर में क्या है, उसका स्टैंडिंग पॉस्चर ही अलग है, तो इसमें गैप दिख रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जिसमें वो काफ़ी क्लोज अपनी लेग्स को लेके एक इंसान खड़ा हुआ है, तो उस केस में ये आपको लेग्स थोड़ा सा कवर्ड दिखेंगी एक दूसरे, मतलब जो फ्रंट लेग है वो दूसरी लेग को कवर कर लेगी, राइट। हम्म देखिए अपर टोर्सो मैंने डिस्कस किया, आई डिस्कस दिस लोअर टोर्सो पार्ट, आई डिस्कस्ड दिस लेग्स पार्ट। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बनाते हैं फेस। फेस में भी क्या होता है, टेक अ फ्रेम, जैसे सैमी आपको ओवल बताया था, इसको अगर अच्छा इसमें 3/4 अगर मैं पार्ट करता हूँ तो 3/4 60/40 रेशो पे आएगा। अब आई लेवल का हम लोग मार्क करते हैं 3/4 लेवल पे, हैव टू जस्ट डबल दिस वन, दिस पार्ट। अब इसमें ईयर से एज से थोड़ा सा अंदर हो जाते हैं, थोड़ा सा अंदर। और नेक लाइन जो बैक नेक है वो ईयर के नीचे, फ्रंट चेन के नीचे से क्रिएट होगी दिस वे। अब इसके अंदर अगर मैं इसके फीचर्स को क्रिएट करूँगा, फीचर्स अगेन सेंटर पे आईज, राइट, देन नोज, देन लिप्स, eyeball to eyeball. Now side locks, then your hairstyle. The other side here won't be visible in 3/4 profile. राइट, दिस इज द वे 3/4 एक फेस वैसे ड्रॉ किया जाता है। अब मैं कंप्लीट इसको ऑल टुगेदर फ्रेश बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आई हैव डिस्कस्ड एवरी पार्ट सेपरेटली, नाउ आई कंपाइल ऑल एवरी पार्ट। आई एम नॉट मेकिंग दिस करंटली, आई एम नॉट मेकिंग दिस फ्रेम, क्योंकि माई पर्पस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस 3/4 फिगर इनिशियली, कि उसको बेसिक्स के साथ बनाते कैसे। once you're okay with it, with the basics and all, then I'll start following examples, people's, or you know, whether a male or a female is standing in different body postures and different styles, right। अभी हम्म normally मैं आपको एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ which is very important। देखिए we start with the face part। face part में इसको हम 3/4 लेते हैं, और इसको हम, आप ऐसे लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक सर्कल आपने सेमी ओवल लिया, इसको 3/4 लेवल पे आपने ड्रॉ किया, देन इसको 3/4 लेवल को यू हैव टू रिपीट दैट पार्ट। फॉर फ्रंट, फ्रंट साइड जो इसका है वो ऐसा दिखेगा, एंड फ्रॉम द अदर साइड जो ईयर्स वाला पार्ट होता है, ऐसे जॉ लाइन क्रिएट होती है। अब इनसाइड आप उसको इरेज कर सकते हैं। ईयर्स लेवल के लिए अगेन, राइट, आईब्रोज एंड आईज, नाउ नोज एंड लिप्स, राइट। सो अब क्या करना है, नेक पार्ट लेंगे, नेक रिमेन्स लिटिल बेंट टुवर्ड्स द फ्रंट। और अब इसमें अगर मैं एक फ्रेम ऐड कर रहा हूँ, just double of this thing, your face, vertically and horizontally both. Enlargement of this face, size wise. Now, center part comes at 60:40 ratio. Then comes your neckline. और अब इसमें और क्या ऐड करना है वो देखते हैं। इसी में मैं एक लोअर टोर्सो ऐड कर रहा हूँ, राइट। Now, I'm adding legs to it. Just double to this and look it. फ्रॉम द अपर साइड आप इसको थोड़ा सा लेग पार्ट को हाइड कर सकते हैं, एंड एट द बॉटम लेग जब थोड़े से ओपन हो जाते हैं तो थोड़ा सा ओपन, जिसमें विजिबिलिटी रहेगी, गैप रहेगा, आई मीन। और आप लोअर टोर्सो का जो लाइन्स है उसको आप इरेज कर सकते हैं। नाउ इट कम्स योर आर्म्स पार्ट। आर्म्स में देखिए क्या है, आर्म्स के लिए सिलेंडर है, देन आपका बॉडी है, आर्म्स ने बॉडी को हाइड किया, देन इस बॉडी पार्ट ने आपके नेक्स्ट आर्म को हाइड किया, अब पार्टली, ठीक है। वही अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके आर्म्स आ रहे हैं, your elbow remains right above your waistline, then
Look at your wrist level comes up to your cross level, and then here comes your hand. Right? Your hand is covering your body a bit, and now comes the other side of your hand. Here. We have to maintain the tilt throughout. जैसे मैंने आपको फ्रेम बताया था, देखिए we have to maintain the tilt throughout the body. Waistline, elbow to elbow, cross to cross. I mean, wrist to wrist, even hands to hands. We have to maintain that, and your bottom to bottom, even your feet to feet. So वो 3/4 पे up to your shoulder line, it will remain flat as it is shown in like horizontal base पे, or from your elbow part it starts showing in your that tilted flow. So this is your 3/4 frame, right? So एक बार आप ये समझ लीजिए. Are you okay with it, or should I repeat something? नहीं नहीं, Okay, I'm great. okay. Okay, great. Now what I'm doing is same figure I'm using for walking. वॉकिंग में अगर सपोज करिए मेरे को इसको वॉक बनाना है, तो वॉक कैसे बनाएंगे? तो अप टू योर लोअर टोर्सल, फेस, अपर टोर्सल, लोअर टोर्सल रिमेन सेम. वॉकिंग में मैंने आपको बताया था एक साइड प्रोफाइल में वॉकिंग ऐसा बनता है, राइट? सो विल यूज सेम थिंग इन वॉकिंग. सपोज मैं अपना एक राइट लेग या लेफ्ट लेग में आगे लेके आ रहा हूँ. अगर मैं इसको सिलेंड्रिकल वे में लेके आता हूँ, upper leg, and then comes your lower leg, and your other side leg falls flat, vertical, and then इसको हम लोग ये देखिए vertical and then little bend towards the back, right? So it will look like this. Getting it? So मैं इसको अब डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ आपको. देखिए, और ये डिपेंड करता है गैप कितना है. देखिए एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ वॉकिंग. समवन टेक्स, यू नो, समवन हैज बिग गैप्स इन टू लेग्स जैसे वो चलते हैं. समवन हैज वेरी लिटिल गैप इन लेग्स व्हेन वन वॉक्स. तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसको गैप कम भी कर सकते हैं. गैप कम करने के लिए हमें इसका जो लेग्स है इसको थोड़ा सा आगे दिखाना है, नॉट मच. और बैक के लिए क्या है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेग दिख सकता है, राइट? दिस इज अगेन अ वॉक, दिस इज अगेन अ वॉक. इसमें क्या मैंने लेग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया. सो दिस इज अगेन अ स्टाइल ऑफ अ वॉक फॉर समवन. So everybody has a different walking style or sitting style or eating style. Everyone is different from one another in every sense. Looks are different. Every style is different. Supposingly when 2, 3, 4, 5, 10 people are sitting in a room or anywhere, so you just start noticing people how different they are. Not in terms of looks, in even their action, their sitting style, walking style, eating style. Every style is different from one another. So this is the way I'm showing the difference in walking as well here. So we can make endless varieties of everything, whether it is walk also. So जैसे ये बनाया, अब इसमें जो अब एक चीज़ और होती है. जैसे ये आपके लेग्स है, अगर आप supposedly for some figure, supposedly you have to draw a scene composition for a storyboarding or whatever comes in your exam today or tomorrow in your professional career. Supposedly you have to make some uh, composition, a scene, supposedly a roadside view, a market view, mall view, or whatever. So you have to show 4, 5, 10 people, walking, standing, running around. So you can create different varieties in them. Like supposedly you are showing 2, 3 people walking, even supposedly they are friends and walking together, then also you can create different styles in their walk. For some, different varieties can be created, which I'll teach you in the time to come. But for now, this is it goes like this only, right? So अब जैसे मैंने इसका लेग आगे बढ़ाया है, बट इसकी वॉक स्लो है, ये ध्यान रखिए. तो वॉक स्लो का मतलब क्या है, इसके आर्म्स पे भी उतना ही कम फोर्स रहेगा, राइट? अगर इसके लेग्स में if there is a big gap in legs, तो उस केस में मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है मेरा कहने का, कि the more you gap show in legs,
तो उसका सेम रिस्पेक्टिव उसके आर्म्स में भी उतना फोर्स दिखना चाहिए. Is it fine? Mm. The more gap you are showing in legs, same way, the same ratio or same ratio of gaps or force will be maintained in arms also. Getting it? It Yeah. shows the man is walking quite fast, but here it Mm. shows as if ये बहुत slow चल रहा है. राइट. तो स्लो मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि लेग्स तो स्लो है बट आर्म्स उसके फास्ट चल रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो देखो लेग्स एंड आर्म्स Yeah. कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, तो वो Mm. एक एक ही रेशो में उनकी मूवमेंट होती है. तो इसके दूसरी साइड के आर्म को भी हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे. स्लो मतलब उनके जो गैप्स हैं उनको ज़्यादा हम नहीं लेके आएंगे. ये फ्रंट आर्म, ये पीछे वाली आर्म. राइट. इज दिस फाइन? सो ये आपका Yeah. सेम कैरेक्टर आपका वॉकिंग में जो मैंने यहाँ पे आपका स्टैंडिंग बनाया था. स्टैंडिंग एज इन Yeah. आपको दिखाया था मैंने भी. राइट. हाँ. ये देखो. सो ये हो गया. अब हम क्या करते हैं, इसी इसी कैरेक्टर को हम लोग रनिंग बनाते हैं. राइट. अब रनिंग में कैसा दिखेगा वो बताता हूँ. देखिए रनिंग मीन्स मैंने आपको एक फ्रेम बताया था जिसमें साइड में कि which is exaggerated frame which has a force index because running में तो force होता ही है. और Mm. जो आपका जो what you call हेड है वो बॉडी को थोड़ा सा, जब बॉडी बेंड होता है तो डेफिनेटली आपका हेड शोल्डर लाइन को क्रॉस कर लेता है थोड़ा सा. और आर्म्स पे भी फोर्स आ जाता है क्योंकि देयर इज अ फोर्स इन लेग्स, exaggeration in legs, so we have to maintain exaggeration in your arms as well. इसी चीज को हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे. देखिए कैसे. देखिए पहले मैं इसके हेड को थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ. आगे लाने का मतलब ये होता है क्योंकि इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा. जैसे मैं एक बार इसको दोबारा बना देता हूँ. जस्ट मेक दिस स्टिक ड्राइंग फॉर यू अगेन. जैसे इसमें फोर्स था तो अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फ्रेम को थोड़ा आगे बेंड कराना पड़ेगा. ये चीज़ गेटिंग दिस पॉइंट. लेकिन बेंडिंग का मतलब ये है कि आपका जो इसमें बेंडिंग के साथ साथ क्या होगा, थोड़ा सा फ्रेम इट विल लुक एज इफ जैसे वो शोल्डर को भी थोड़ा सा आगे ओवरलैप कर रहा है. ये बाय डिफॉल्ट इट लुक्स लाइक दिस. तो अभी 60-40 रेशो हमने मेंटेन किया. बॉडी बेंड हो गया. इज फाइन. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सिलेंडर, इफ यू आर कीपिंग अ सिलेंडर वर्टिकल एंड सपोजिंगली यू हैव टू बेंड द सिलेंडर. Mm. राइट. तो बेंडिंग में क्या होता है, तो साइज रिड्यूस होता है, वर्टिकल लेंथ Mm. इसकी शॉर्ट दिखाई देगी, प्लस कर्व्स और प्रोमिनेंट हो जाएंगे इसके. जैसे स्टैंडिंग सिलेंडर में जो कर्व लाइंस है वो थोड़ा सा इट्स फॉलिंग फ्लैट, बट व्हेन इट कम्स टू बेंडिंग, तो बेंडिंग में क्या होता है, जो कर्व लाइंस है वो ज़्यादा और राउंडेड हो जाती है और हाइट इसकी कम लगने लग जाती है. और अगर इसको और बेंड करोगे तो इट विल लुक लाइक दिस. गेटिंग द पॉइंट. Mm. तो उसी उसी चीज़ को हमने यहाँ पे मेंटेन करना है. मेंटेन कैसे, एक तो इसकी जो लेंथ है हमारी उसको थोड़ा सा शॉर्ट हो बिकॉज इट्स बेंडिंग. अब ये Mm. देखिए, अब ये वाला जो लेग पार्ट है, सपोज हमने एक लोअर टोर्सो भी, वी आर क्रिएटिंग द लोअर टोर्सो. ये वाला लेग, चलो उस लेग को आगे ले आते हैं, डजंट मैटर. ये लेग हम आगे लाए. ये देखिए फाइन. अब ये वाला पार्ट Mm. यू हैव टू कीप दिस लुक स्ट्रेट वर्टिकल गोइंग एंड गेटिंग. इसको आप यू कैन Mm. take it little inward as well as outward as well. मतलब you can keep it right behind this slender तो भी चलेगा. और अगर आप इसको थोड़ा सा इनसाइड लेके चले जाते हो तो भी चलेगा. और इसको भी थोड़ा सा अगर हम और क्रॉस करा दें अन टुवर्ड्स इनसाइड, ये देखिए थोड़ा सा तो इट लुक्स, इट गिव्स मोर रियलिस्टिक लुक. गेटिंग माय पॉइंट. Every, as I told you, everyone Yeah. has a different style for everything. Every body posture is different. तो कोई ऐसे भागेगा, कोई लेग किसी का थोड़ा सा सीधा नजर आ सकता है, किसी का ये वाला पार्ट थोड़ा सा सीधा नजर आ सकता है. तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. राइट. सो अब हम Mm. इसका आर्म्स को लेके आते हैं. ये देखिए आर्म्स का क्या है,
ये देखिए अब आर्म्स, ये वाला जो लेग पीछे इसके रिस्पेक्ट द आर्म विल कम फॉरवर्ड, ये एंड इट विल मेक अ फिस्ट हियर, getting, and the other arm will go behind and which will not be seen क्योंकि वो आर्म पूरा हाइड हो गया ड्यू टू द एंगल, इसमें आर्म नहीं नजर आएगा, थोड़ा सा पीछे जाता हुआ देखेगा, थोड़ा सा और इसको आई जस्ट मेक इट क्लियर, परफेक्ट, गेटिंग इट। तो इस तरीके से Yeah. आपका ये क्यों बड़ा दिख रहा है, यू नो, बिकॉज फोर शॉर्टनिंग व्यू, फोर शॉर्टनिंग में क्या होता है, कोई चीज़ आपकी एकदम पास आती है तो बड़ी दिखती है, डिपेंड कर, और वो बॉडी पार्ट उसका दूर है तो कंपैरेटिवली यहाँ पे व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्ले विद द बॉडी प्रोपोर्शंस एज वेल। नॉर्मली के व्हेन वी आर शोइंग अ पर्सन स्टैंडिंग तो हम इसको शोल्डर टू वेस्ट एंड वेस्ट टू नी एंड नी टू एंकल एंड वी आर कीपिंग द लेंथ्स इक्वल, बट व्हेन इट कम्स टू सच काइंड ऑफ फ्रेम्स तो इसमें थोड़ा सा वी कैन प्ले, दिस इज द फ्रीडम एन आर्टिस्ट कैन हैव। तो इसमें क्या ये पार्ट पीछे है, बेंडिंग में आ रहा है, छोटा कर दिया, इसके रिस्पेक्टिव फेस है, फिर इसके जो लेग्स है, जो ये वाला पार्ट है खास करके स्पेसिफिकली ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, क्यों, बिकॉज ऑफ गिविंग टू इट अ फोर शॉर्टिंग लुक काइंड ऑफ अ थिंग। तो इस तरीके से वी कैन प्ले विद, यू नो, तो ये एक आपका रनिंग हो गया। अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ सिटिंग, सिटिंग कैसे बनाते हैं वो देखो, जस्ट यस, अब सिटिंग में आपने लेग्स हटा दिए, आर्म्स हटा दीजिए, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए सेटिंग, अगर मैं एक मिनट इस पार्ट को भी हटा देता हूँ, सेटिंग में अगर मैं 3/4 या सब 3/4 में अगर हम लोग सेटिंग बनाते हैं तो इसमें क्या होता है नॉर्मली, ये देखिए राइट, ये आपका फ्रेम आ गया और यहाँ पे आपके आर्म्स आ जाएंगे, रिस्ट, योर हैंड्स विल रेस्ट ऑन योर थाइज, और यहाँ पे हम कोई पीछे चेयर दिखा सकते हैं, चेयर पे लेग्स आ सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हमने इसको यूज़ करना है, यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। अगर मुझे इसके पहले मैं इसको थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आई एलैबोरेट दिस थोड़ा सा फॉर यू ओनली, कि इसमें आप और क्लियर हो जाएगा। लोअर टोर्सो बनाया, यहाँ पे हमने इसके क्या कर रहे हैं, लेग सिलेंडर्स निकाल रहे हैं अंदर से इसके, राइट। अब ये फर्स्ट लेग इज कवरिंग अ बिट ऑफ योर अदर लेग, गेटिंग इट, बिकॉज ऑफ द 3/4 एंगल, and now we can keep your remaining part of your leg straight, which is below your knee, right? getting it, सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेट बट ये ध्यान रखिएगा, अभी भी ये वाला पार्ट वर्टिकल है, विच विल बी सीन टू द फुलेस्ट जो भी इसका एक्चुअल साइज है, बट दिस इज कमिंग अ बिट इन पर्सपेक्टिव, तो थोड़ा सा हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट एज फार एज योर लोअर पार्ट ऑफ योर लेग इज कंसर्न उसमें फुल लेंथ हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैट है, ये पार्ट फ्लैट है, दिस पार्ट इज लिटिल पर्सपेक्टिव, तो दिस इज योर ओन चॉइस, आर्टिस्ट इज द फ्रीडम। देखिए एट मैक्स व्हाट हैपेंस इज इट शुड लुक गुड, दैट्स ऑल, सही लगना चाहिए, दैट्स ऑल, बिकॉज इन सेमी रियलिस्टिक postures we can, we have freedom to play with the, you know, proportions and all, but not to much extent, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो it should look cartooning kind of, you know, एक फिगर नहीं लगना चाहिए। कार्टूनिंग भी डेफिनेटली we'll be doing in upcoming classes, क्योंकि एनिमेशन, एज फार एज योर एनिमेशन फॉर एंट्रेंस एग्जाम NID इज कंसर्न, तो उसमें आपका एनिमेशन के एग्जाम में दे में आस्क यू टू ड्रॉ कार्टूनिंग एज वेल, तो कार्टूनिंग फिगर्स को भी हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, 2 हेड फिगर्स, 3 हेड, 4 हेड, 1.5 हेड फिगर्स, 2.5 हेड फिगर्स, ये सारा हमें करना है, ठीक है, इन अपकमिंग क्लासेस। तो ये आपको लेग समझ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आर्म्स रख रहा हूँ, आर्म्स पे हम क्या कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू नोटिस दिस, मैं इसको अगेन फिर आपको थोड़ा सा सेपरेट बना, जैसे ये टोर्स हो गया और ये अपर टोर्स एंड लोअर टोर्स, सपोजिंगली में ये थाइज आ गया। अब यहाँ पे आर्म्स आ रहे हैं, आर्म्स को आप ऐसे फ्रंट में लेके आओगे, फ्रंट में ऐसे, ये देखिए यहाँ पे मैं ला रहा हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे क्लियरली,
what I do is इसको थोड़ा सा मैं opacity डाउन करके अब बनाता हूँ, देखिए क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मेरे को शोल्डर्स बनाने, शोल्डर के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने आर्म्स क्रिएट किए, सीधा हो गया। उसके बाद एक सिलेंडर ऐड करिए इसमें फॉर द लोअर आर्म, ये आपका जो हैंड है वो आपके थाइस पे रेस्ट करेगा। परफेक्ट। अदर साइड का भी फ्रेम क्या होगा, थोड़ा सा हिट कवर्ड रहेगा आपके बिकॉज ऑफ योर अपर टोर्सो पार्ट। यहाँ पे आपका आर्म आएगा, बट ये ध्यान रखना ये इट शुड मैच एल्बो टू एल्बो एंड रिस्ट टू रिस्ट एंड यहाँ पे आपका दूसरा हैंड आ जाएगा। लेंथ ऑफ हैंड्स एवरीथिंग शुड लुक सेम। तो ये आपका इस तरीके से ये फिगर आ जाता है। इसको मैं यहाँ पे ट्रेस कर देता हूँ। In upcoming classes, I'll be teaching you how to make the wrinkles in garments. Wrinkles कैसे बनाते हैं garments में, जैसे अगर आपको कोई भी एक ड्रेस बनानी है, कोई फिगर दिखानी है, तो उसको wrinkles के साथ कैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं वो बताऊंगा इन अपकमिंग क्लासेस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी, वो आने वाले टाइम में आपके साथ बताऊंगा, बट फॉर नाउ अब जो बना रहा हूँ वो देख, ठीक है इसलिए। तो ये आपका सेटिंग पार्ट हो जाता है। इसके अंदर हम जैसे लेग्स लेके आ रहे हैं, सॉरी चेयर, अब इसके पीछे चेयर रख सकते हैं, इसके लेग के पीछे, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, और इसके पीछे आप ये इसका चेयर का बैक रख लीजिए this way. वैसे you can show someone sitting on chair, sofa, bed, anywhere, like you can, right? So अगर अब इन टोटल अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने सिटिंग बनाया, वॉकिंग, रनिंग एंड स्टैंडिंग। अभी तक क्लियर है सारा, राइट? हाँ। ओके ग्रेट। अब मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा फास्ट स्केचिंग भी हो सकती है। अब नाउ बहुत ज़्यादा बेसिक्स को नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि हैव मेड सच थिंग्स वेरी क्लियर, फिर भी जितना मुझे लगा बताता हूँ। जैसे 3/4 है, 3/4 में क्या आपने एक फ्रेम बनाया, थोड़ा सा हेड इसका थोड़ा सा एक तरफ टिल्टेड है, ये देखिए, और ये इसका नेक आ गया, ये देखिए, थोड़ा सा एक हल्का सा बेंड है इसकी बॉडी में, स्लाइड्स, और ये इसमें थोड़ा सा मस्कुलर फ्रेम है। वैसे कि मैं मसल्स के ऊपर नहीं जा रहा हूँ अभी। ये देखिए इन्होंने शोल्डर टू वेस्ट लाइन बनाया, हेड को थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए, और यस अब इसका डबल कर लेते हैं एंड देन यहाँ तक ले लेते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्ट एक इन्होंने कपड़ा बनाया, इसको टी शर्ट काइंड ऑफ स्टफ जो है इनको ये बनाया उन्होंने। फिर ये जो ब्रॉडर फ्रेम है, बेसिकली मैंने आपको बताया मस्कुलर है, उसके लिए उन्होंने इसका थोड़ा सा चेस्ट पार्ट की तरफ से टी शर्ट को थोड़ा सा ब्रॉड किया है, राइट। ओके, अब आर्म्स आ गए, आर्म्स को भी थोड़ा सा सिंपल रख लेते हैं। वी आर नॉट गोइंग फॉर द मस्कुलर पार्ट अभी, क्योंकि मसल्स की अलग क्लास है, वो मैं अलग से आपको मसल्स का स्टडी कराऊंगा। अब देखिए लोअर टोर्सो में हम इसका एक डायरेक्ट एक शॉर्ट्स जो इसने बनाया वो ले लेते हैं, और यस अब फिर अच्छा लेग्स में भी इन्होंने क्या किया, मसल्स थोड़े से क्रिएट किए हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल टफ टू क्रिएट, बहुत आसान होता है। आप इसको नॉर्मल रखिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको नॉर्मल रख सकते हैं, बट यस एक मैंने आपको बेसिक पॉस्चर निकाल के दिखाया है कि कैसे उसके जो हमने अभी किया है, जो भी काम किया उसके बेसिस पे इसको क्रिएट करना बहुत आसान है, राइट। राइट, मैं इसमें मसल्स नहीं ऐड किए मैंने इंटेंशनली, क्योंकि मसल स्टडी सेपरेट है। अगर आप मुझे बोलो मैं आपको करा सकता हूँ अभी, या फिर वी शुड कीप इट फॉर द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आई वांट यू टू प्रैक्टिस द बेसिक्स ऑफ योर, एंड वन मोर थिंग, इन NID काइंड ऑफ लाइक एनिमेशन exam, you won't be asked to create muscles, that's for sure, क्योंकि they have nothing to do with your this thing muscular body, क्योंकि उसमें एनिमेशन मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। they'll ask you for animation principles, they may ask you to draw they may ask you to draw walking frames or running frames or animation frames, many more things are there, but they won't ask you for this muscular part of our body, human body,
But anyhow, we are going to do it for sure. वो तो हमें करना ही करना है. I'm not going to miss that part. वो तो करना ही है. लेकिन I'm just telling you. Mm. ये समझ आ गया आपको? Is this fine? Yeah, Okay, it great. is. Now I take the other example. Okay, great. Uh, yeah, this. Yeah, चलो front आ गया. Front ले लेते हैं. मतलब random. I'm taking random figures. Right. देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं. तो आपको भी क्या करना चाहिए. जो मैं आपको बेसिक्स बताए हैं वो तो चलो ठीक है. और learning the basics, that's fine, but further you have to practice on such figures. You pick any, you take any reference from Pinterest, Instagram, or Google. I'm not asking you to copy figures. I'm asking you to apply my method, my concepts to create such figures. Please don't try to copy Mm. these. Apply my method, my concept to create this. Then you'll find it very easy. अब देखिए वही मैं कर रहा Mm. हूँ यहाँ पे. मैंने सेम इसको डबल, आई जस्ट डिड डबल ऑफ द स्पेस. उसके बाद आई एम डूइंग. और हाँ, इसमें एक चीज़ और एडिशन है. इसमें लेग्स इसके ओपन है एज पर द पोस्चर. इसका स्टैंडिंग फिगर. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इनसाइड एक जिपर बनाया. यहाँ पे इसके स्टैंडिंग कॉलर बना दिए. विच आर वेरी इजी टू मेक. फिर उसके बाद ये आप फेस लाइन को रेस कर दीजिए. ठीक है. अच्छा, आपने देखा कि मैंने किया क्या. बेसिकली फेस लिया, फेस के Mm. बाद मैंने इसका डबल किया. कोई सेम फ्रेम लिया. देन आई टुक these frames up to इसके. I used 3 frames for creating this figure. Same 3.5 frames. 1/2 for face and 3 frames, rectangular frames for remaining body. Okay. अब यहाँ क्या कर रहे हैं. Converter से ये क्रॉस लेवल एंड यहाँ पे इसका. We'll be going for designing this thing, footwear as well, accessory, everything will be designing gradually. This is your third class, I think. Yes, Okay. yes. Yeah. In just 3 classes, we are reaching up to covering the whole human figures in all angles and all. So this is something very good. We are going in very good speed. Right. Okay. Now it comes to arms. Arms का उन्होंने क्या किया है. He's holding a bat. Mm. Right. अब इस बैट को उसने यहाँ से अपने हाथ से पकड़ा हुआ है और यहाँ पे इसने अपना हैंड को यूज किया. यहाँ पे लगा लीजिए. We'll be doing hands details as well, right? Mm. But frankly speaking, in last class I was very happy to attend you because you showed me good work of yours, good practice. But today you are Thank doing you. other things. Watercolor won't be helping you in exam. Mind it. Mm. Watercolor is not going to help you in exam because Mm. they don't ask you to go for watercolors or some wet colors. So Yeah. I'm drawing the outer jacket for this. So you have to understand this. Give more time to practice your NID for your NID, right? So this is, I Mm. captured the frame. Now I go for its face part. So second, okay. Cap, spectacles, nose, face, eyes. So once you are good at basics, I can assure you can capture any frame within minutes. Within minutes. Right? Is this fine? Hello? Mm. Yeah. Okay. Now I take Huh. one more. Yeah, yeah. I take one more example. Now we go for this thing. This is 3/4. A bit of 3/4, not 60-40 ratio. You can say 55 is to Mm. 40. Little, not much. So this is the face. The body is going in other direction, in one direction, whereas the face in the opposite direction. Right? Yeah, they could.
बॉडी इधर है, फेस दूसरी डायरेक्शन में है, so this is the freedom for you to create, figures in any whichever the way you want. This is the face, then this का neck. This is a muscular frame, butt, double, 3 times the body frame. Now the dress which he is wearing. You can keep the frame little broader, little broader. Mhm. Okay. Or even though they have, like, I think they have shown its little tummy as well. It has Mhm. little bulky. So yes, we can create little. We can show little bulky from the tummy part. ये part आया. ये हो गया इसका lower torso. Then comes your footwear and front pocket. अब इसके जो arms हैं, these are stylized. He has created this person bit in Mhm. style which we don't require. We can create it in a simple way, the way we are creating. Mhm. The tool he is holding, right? And right, yeah, now this is fine, right? और इसका जो face है वो इसका I keep it towards right hand side. Even I shared screenshots with you. Hmm? I shared the screenshots with you so that Yeah, you could practice on yeah. any. So he is wearing some lower as well Mhm. underneath his this thing, upper part. So this is the way it's going. You got this one? Uh, Is this fine? Or if you have any doubt, I can clear it once more. uh, no, it is clear to me. Right. So, I'll take more example. We have to do female figures as well. Your voice is not clear to me. Okay, okay. I'm saying we have to do female figures as well. Yeah, now it is clear. Yeah. Yeah, this running. Okay. Face. Now in this drawing, they are showing neck part as well, which I was hiding in front. But in this Mm. drawing, the artist is shown. He spread the body a bit, but he is showing the neck part as well. Because it's a little cartooning actually. Mm. Just doing this speed drawing. And shots as well. Yeah. So how fast it's
getting done within no time. Hello? Hello? Yeah. So I'm saying how fast it is getting done within no time. Yeah. Yeah, within no time. It's taking hardly minutes to cover any frame, any posture. So Mm. I'm ending my class for today. So I believe you have understood the concepts for 3/4, right? If you have any doubt, Yeah. you can ask me. If you have any doubt, Uh, you can ask me, please. mm. Or is it okay for today? Yeah, it is okay. Chalo. Okay, bye bye. See you on Monday, right? Bye. Same time, same Yeah. place. Yeah, bye bye. Thank you.